Assalamu alaikum. Today we have 26th lecture from Business Finance MGT 232. We'll be starting a new chapter, that is dividend policy, and in the last lecture we studied capital structure determination. Let's have a brief overview of our last lecture. In our last lecture we studied about NOI and traditional approach. Then we moved to the total value of the value principle. Total value principle was explained by Modigliani and Miller. Modigliani and Miller explained the relationship between the financial leverage and the capital structure, and they also focused on the total value of a firm. They focused and they explained that a total value of a firm remains the same whatever capital structure is being followed, and in relation to the financial leverage. They also explained whether you increase or decrease the financial leverage, that is the dependence on the debt financing. If you increase the dependence on the debt financing, there will be no difference on the total value of a firm. Then we discussed two different companies with two different debt and equity capital structure. For example, we have a company whose capital structure is like 65% debt and 35% equity, or we have a company whose 35% debt and 65% as equity. Now these two companies have a different capital structure but have all other things being considered as similar. They don't have any difference in the value of their firm. So whether we increase the debt financing, increase the financial leverage, there will be no difference, or we decrease the financial leverage, there will be no difference in the total value of the firm of two different companies. Now that was explained by Miller and Modigliani, but of course there can come a difference. Now when we say that there is in every aspect the companies are same, they have the different capital structure, but in case, and we say that there should be a same value of a firm. Now let's suppose we say that there is a difference in the value of a firm. अब ऐसा हो जाता है कि दो companies similar है, सब कुछ similar है, value of the firm similar. Now let's suppose value of the firm similar नहीं है. In that case, arbitrage is possible. We say that arbitrage is possible. Now arbitrage क्या है? Arbitrage जो है वो two different किस्म के assumptions के साथ चलता है. First thing arbitrage में क्या आती है कि let's suppose अगर दो different companies similar हैं, तो how they are going to move on with similar है लेकिन total value of a firm difference है, तो how they are going to move to get the value of a firm equal to each other. उसके अंदर हमारे पास two different assumptions हैं. The two different conditions of arbitrage. One is your arbitrage is possible when we have two different options. In case of arbitrage, what we are going to do is we are going to purchase the stock which is cheaper, and we are going to sell the stock which is expensive. That means let's suppose we have two companies, and एक company ऐसी, दोनों company की एक जैसी value, सब कुछ similar, but they have two different value, two capital structure भी same है, different है, सब कुछ अलग है, लेकिन वहाँ पे arbitrage possible है. और arbitrage possibility का मतलब ये है कि हम उसमें से ऐसा कोई स्टॉक जो कि चीपर था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करेंगे, टोटल इक्विटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, अपनी एक पूरी एग्जांपल सॉल्व आउट की थी. अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपकी यू हैव योर स्टॉक लेस एक्सपेंसिव, ये जो कि चीपर कंपनी स्टॉक है उसको खरीद दिया जाएगा, और वो जो कि एक्सपेंसिव उसको बेच दिया जाएगा, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड डिविडेंड पॉलिसी या रिस्ट्रिक्टेड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ योर स्टॉक नहीं है. इस सेकंड असम्पशन इसमें ये थी कि जब तक के कंपनी ये बाइंग एंड सेलिंग विल कंटिन्यू until unless both the companies have the similar total value of a firm becomes similar for both the companies. Besides that, हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ अ फर्म, और अगर दोनों के बीच में कोई और सारी चीजें सिमिलर हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंस ऑन द फाइनेंशियल लिवरेज. तो M&M ने, दैट इज मोदिग्लानी एंड मिलर, इन दोनों ने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि, और कंक्लूड ये किया था इससे, वो ये कि फाइनेंशियल लिवरेज जैसी भी पोजीशन हो, इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट अफेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. सो जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, वेदर यू आर इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल लिवरेज, देयर विल बी अ कांस्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, और you can say a constant total value of a firm.
Then we moved on to the market imperfections and incentive issues जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कौन सी ऐसी market imperfections है including your transaction cost and many other different costs जो कि create करती है या affect करती है your total value of a firm. Then we move on to the effect of taxes. Few of the taxes हमने effect देखे थे कि क्या क्या effect आ सकता है due to changes in the tax and how that change in the tax does directly affect the डायरेक्टली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अ फर्म. तो हमने टैक्स की वैल्यू ली थी जिसमें 40% हमने लेट्स सपोज टैक्स ले लिया. हम कंपनी दो डिफरेंट कंपनीज कंसिडर किए, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम बट द टैक्स एंड इवन द टैक्स अमाउंट इज सेम. लेकिन एक कंपनी जो है दैट इज द वन which has no debt, there is no financial leverage, and another company who has a strong financial leverage. तो इन दोनों के ऊपर अगर टैक्सेस पेमेंट आए तो फिर उसके बाद उनकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है एंड कितना ज्यादा. एंड अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूज until and unless both the companies have the similar total value of a firm. Well, that was all about your last lecture, the more focused on the total value of a firm or the financial leverage or the capital structure. Well, let's move to our next chapter, that is your dividend policy. Now, whenever we define dividend policy, simple in a simple words, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल स्टार्ट के जो लेक्चर्स थे वहाँ पे हम लोग एजेंसी कॉस्ट वगैरह और हमने बहुत सारी और थ्योरीज डिस्कस की थी, जिनके अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली इवन स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में भी मैं डिफाइन करती रही हूँ कि देयर हैज बीन अ डिविडेंड पॉलिसी. ये डिविडेंड पॉलिसी में डिस्कस होता है, डिविडेंड देना है नहीं देना, किस साल देना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ये सब डिविडेंड पॉलिसी में डिस्कस होता है. नाउ वी विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग दैट डिविडेंड पॉलिसी कि हाउ इट इज गोइंग टू work. Now let's look at few of the things that we are going to study in this chapter. The first thing we are going to study is your passive versus active dividend policies. कि वो dividend policies जो कि बहुत passive होती हैं और वो dividend policies जो कि active होती हैं और वो कितना difference आता है और किस तरीके से वो formulate की जाती है. Then we will be studying factors influencing the dividend policy. ऐसे कौन से factors हैं जिनको dividend policy formate करते वक्त उसकी formation के वक्त consider करना पड़ता है and they do have an influence on the dividend policy. जिस तरह time के साथ अगर कुछ ऐसे factors आए so how we are going to change our dividend policy. Then we will be moving on to the dividend stability. That means कि जितने ज़्यादा dividend आपके stable होंगे उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेहतर है, उतना ज़्यादा your investors and your shareholders will be moving towards your company where the dividend are stable. Then we will be moving to stock dividends and stock splits. What kind of stock dividends? These are actually basically the types of different dividends जिसमें हमारे पास stock dividend and stock splits आ जाते हैं. Then and also we have extraordinary dividend and we have regular dividend as well. Then we will be moving on to stock repurchase. This is again related to some kind of a stock dividend, कैसे से stock repurchase होता है. And then we will be moving on to the administrative consideration. वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको consider करना, ये उनकी cost जो अगर होती है या restrictions होती हैं, ये requirements होती हैं in order to make your dividend policy. Now let's look at the dividend as a passive residual. Now why we are calling it as a residual? In starting chapters I have told you this thing. Whenever we have net income, after net income आपके जब net profit आ जाता है, the first thing is your retained earnings. हमने पहले अपने creditors को pay कर दिया, हमने tax pay कर दिया, now we are going to retain few earnings. उसमें से retained earnings रखी जाती है ताकि आगे investment की जाए, कुछ cash जो हमने within an organization एक cash requirement रखनी होती है वो रखी जा सके और फिर आगे जाके हमने अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी है, उनकी फाइनेंसिंग करनी है तो वो भी हम रिटेन है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स. उन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं. उसके बाद आपकी डिविडेंड पॉलिसी में प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में जो कुछ डिफाइन है वो चीजें, एंड देन यू मूव ऑन टू योर कॉमन स्टॉक होल्डर्स जिनको आप रेजिडुअल इनकम जो बच चुकी हुई इनकम होती है दैट इज बीइंग गिवन टू योर कॉमन शेयर होल्डर्स. नाउ कैन लेट्स हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. द फर्स्ट वन इज कैन द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड अफेक्ट द शेयर होल्डर वेल्थ. क्या कैश डिविडेंड जो पेमेंट दी जाती है डिविडेंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैश डज दे affect the shareholder wealth? And if so, अगर ऐसा है कि they do have an effect on the shareholder wealth, if so, what dividend payout ratio will maximize the shareholders wealth? Now, जब भी dividend policy बनाई जाती है तो वहाँ पे एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा फोकस की जाती है, जिसके अंदर आपका ये चीज क्लियरली डिफाइंड होती है कि फोकस हमारा है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो नो एन अप्रोप्रिएट गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो द फोकस इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. डिविडेंड पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि डिविडेंड पॉलिसी अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होनी चाहिए, कितने परसेंटेज के साथ आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिफाइन करते हो, या इतना परसेंटेज आपका ऑन एवरेज हर साल इतनी डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए.
आउट ऑफ इनकम इतने परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जाएगा। तो वो डिफाइन करते हैं कि क्या वेदर इट इज गोइंग टू हैव एन इन्फ्लुएंस और द इंक्रीज ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और नॉट। Then the firm uses earnings plus the additional financing that increase the quality equity can support to finance any expected future positive net present value projects. Now क्या है कि the firm क्या करती है, अपनी earnings, एक total overall earnings आई plus additional financing that increase equity can support to finance any expected future net present value. अब मेरे पास total income आई है, उस earnings के अंदर मैं और financing करूंगी जो कि मुझे equity financing चाहिए, वो सब use करके I'll be giving to putting that as retained earnings. अब वो retained earnings में से कुछ हमने cash requirements कर दी, कुछ और creditors की पेमेंट थी और कहीं और पेमेंट चाहता था कि रखनी है, कुछ एक्रूअल टैक्सेस थे, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हमने खैर वो पहले कुछ चीजें पेमेंट होंगी, कुछ रिमेनिंग रहेंगी। फिर उसके बाद हमारी कंपनी के पास न्यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स हैं दैट कैन गिव अस अ न्यू पॉजिटिव रिटर्न, तो हम क्या करते हैं कि हमारा फोकस ये होता है कि अपनी रिटेन अर्निंग्स पे से और इक्विटी फाइनेंस सारे मिला लो के पहले तो अपने उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन एज अ डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स। नाउ एनी अनयूज्ड अर्निंग्स आर पेड आउट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। दिस डिस्क्राइब्स अ पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। नाउ पैसिव डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि पैसिवली यू आर गिविंग कैश डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स। पहले हमारी सारी फाइनेंसिंग की जाती है, पहले ये देखा जाता है कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कंपनी में कहाँ जरूरत ज्यादा है, जहां पहले फाइनेंसिंग कर ली, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी दैट इज एन अनयूज्ड अमाउंट that is being given as a dividend policy to your shareholders. Now let's look at the relevance of dividends कि किस तरीके से आपके dividends कितने ज़्यादा relevant होते हैं in earnings और in case कि आपके इनके ऊपर preference क्यों दी जाती है। Now let's look at the first topic, that is your preference for dividends. Now, uncertainty surrounding future company profitability leads certain investors to prefer the certainty of current dividends. अब this is very important कि uncertainty अगर surround करेगी future company profitability को, that leads to certain investors to prefer the certainty of current dividends. ठीक है, वो ये देखते हैं, उनका focus ये होता है कि जो current dividend मिल रहा है क्या वो certain है कि नहीं है, क्योंकि हर वक्त we are revolved around with the risk and there is an uncertainty in the future. तो अब ये देखा जाता है कि future forecast, even if your company or your own your company, your shareholders, your own management is not very much certain about your forecasted income or your forecasted earning, then how could you expect your investors to be sure about your current dividends? Then investors prefer large dividends. It is very important कि आप एक तो uncertainty को consider करके आपके सबसे पहले आपके shareholders जो इस चीज को focus करते हैं कि वो certainty जो आपके current dividends है उनके ऊपर certain हो. Secondly, they prefer the large dividend. They do not go for the small dividends and जिसकी percentage आपकी थोड़ी ज़्यादा हो. Then investors do not like to manufacture homemade dividends but prefer the company to distribute them directly. Now when we talk about the homemade dividends, that is your capital gain. That means for example अगर एक company आपको ज़्यादा डिविडेंड नहीं भी पे आउट करी आपकी अर्निंग्स के ऊपर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सर्टेन लेवल ऑफ डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सेल आउट योर स्टॉक्स एंड यू आर गोइंग टू हैव अ कैपिटल गेन. तो हमारे पास डिविडेंड गेन होता है, कैपिटल गेन होता है. इफ वी आर नॉट हैविंग एनफ डिविडेंड गेन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू have our income return from our capital gain. Now most of the investors do not focus this. वो कहते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की है, we are the owners of the company, इस चीज को ही फोकस किया जाए और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ही हम रहे, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, हमें सर्टेनिटी इन डिविडेंड्स चाहिए. सो वो होममेड डिविडेंड्स को प्रेफर नहीं करते. देन द सेकंड वन वी हैव इज टैक्सेस ऑन द इन्वेस्टर. नाउ capital gain taxes are deferred until the actual sale of stock. This creates a timing option. Now this is very important. जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो हमें इस चीज को कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली चीज ये कि हमने टैक्सेस अगर अलाउ हो गया जी टैक्सेस पे करने, आपकी जो डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स होता है दैट इज ग्रेटर देन योर कैपिटल गेन टैक्स. तो कैपिटल गेन तो लेट्स सपोज मैंने कोई चीज मेरे पास थी, मैंने वो बेची, मेरे पास इनकम आ गई, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट विल बी लेस देन द डिविडेंड इनकम, क्योंकि डिविडेंड इनकम आपके पास जो आएगी वो कॉर्पोरेट लेवल पे ही उसकी टैक्सेशन हो रही होती है, तो वो टैक्सेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू समथिंग यू आर गोइंग टू सेल आउट इन द कैपिटल मार्केट एंड यू आर हैविंग सम इनकम. उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कम होगा. इसलिए देखा जाता है कि डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टर्स जो है वो क्या चीज प्रेफर करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग योर डायरेक्ट डिविडेंड्स, बट मोस्ट ऑफ द एट अदर टाइम्स देयर आर इन्वेस्टर्स हु एक्सपेक्ट द कैपिटल गेन एज वेल. नो कैपिटल गेन टैक्सेस आर डेफर्ड. Now what do you mean by deferred? Deferred means कि it is delaying. वो delay करता है until the actual sale of the stock. देखिए कैपिटल गेन आपका तब तक नहीं आपको आएगा या कैपिटल गेन की
पर आप टैक्स तब तक पे नहीं करोगे जब तक आप अपना स्टॉक बेच ना दो। तो जब आप अपना स्टॉक बेचेंगे तो उसके बाद आपके पास उसके वो इनकम आएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वरना आपके ऊपर टैक्स नहीं। अब इसी तरह है कि डिविडेंड, आपको पता है कि डिविडेंड इनकम मिल रही है, इस साल मिल रही है, इस साल मिल रही है, अगले साल नहीं मिल रही, उसके ऊपर आपको एक टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। प्लस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन ये है कि जब पहले इनकम लगती आती है ओवरऑल अर्निंग आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो इनकम आई है, रिटर्न आया, पहले तो उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स पे किया जाए, उसके बाद जब डिविडेंड एज एन इनकम आती है फिर उसके ऊपर दोबारा टैक्स लगता है। तो capital gain has a less tax as compared to your dividend gain. Then we have capital gains are preferred to dividends, एवरीथिंग एल्स इक्वल। कहा यह जाता है सम टाइम जो है आपके कुछ शेयर होल्डर जो है वो कैपिटल गेन को, जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहे थे, अब हम टैक्सेस की टर्म में बात करें तो आपके कैपिटल गेन को प्रेफर किया जाता है। दस हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स शुड सेल एट अ डिस्काउंट टू जनरेट हाई बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न। अब वो डिस्काउंट इसलिए बेचे जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसकी जनरेट हाई बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न। अब टैक्स से पहले वाली रिटर्न जितना ज्यादा अमाउंट हो गया, उनको ज्यादातर आपकी कंपनीज और इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा रिटर्न दिखाना चाहते हैं। जितना ज्यादा रिटर्न होता है, सॉरी कम रिटर्न दिखाना, जितना ज्यादा रिटर्न होता है तो उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है ना, इसीलिए कैपिटल गेन्स को प्रेफर किया जाता है। तो सर्टेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे नो टैक्स, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ और लीगल बाइंडिंग्स होती है, एंड बिसाइड दैट दे हैव द बेनिफिट ऑफ नॉट पेइंग द टैक्सेस, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी अपनी एक लीगल रिक्वायरमेंट्स और सम अदर बेनिफिट्स दे हैव। नाउ देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज ऑफ डिविडेंड्स। द फर्स्ट वन इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये हमने स्टार्ट में भी एक दफा पढ़ा था और आई थिंक कि हमने कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में शायद पढ़ा हो। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी क्या होती है? द फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज इनकर in order to issue your shares। जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उनके ऊपर जो कॉस्ट इनकर होती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज योर सेल ऑफ योर stock, your advertisement for selling the stock to the general public, then there is underwriting cost। ये सब किस्म की जितनी भी कॉस्ट होती है they are called as your flotation cost। Then we have transaction cost and divisibility of securities। तो transaction cost and divisibility of security क्या? transaction cost ये है कि let's suppose if I have a share और मैं उसको बेच के एक कैपिटल गेन लेती हूँ, तो उस पर जो मुझे कॉस्ट इनकर होती है एज ब्रोकरेज फी, जो मैंने ब्रोकर को फी पे करनी है, कमीशन पे करना है, दैट इज माय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बिसाइड दैट कि मैंने एज एन इन्वेस्टर और एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैंने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की हुई, मेरा जितना भी ब्रोकर होगा उसको जितना कमीशन दूंगी, दैट इज जितनी ज्यादा मेरी ट्रांजेक्शन की जाएंगी अकॉर्डिंगली परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज यू विल हैव टू पे टू योर ब्रोकर एज वेल। तो ब्रोकरेज फीस जितनी होती है, जो कमीशन होता है, दैट इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। नाउ वी हैव इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन। नाउ इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस में कुछ ऐसी दो चार चीजें कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है आपके इन्वेस्टमेंट्स को। अब किस तरह से कि लेट्स सपोज कोई इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि सर्टेन लेवल ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, वो जो कि सर्टेन डिविडेंड देती है, जो कि सर्टेनिटी इन डिविडेंड्स देती है, स्टेबल डिविडेंड देती है। ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर कैपिटल गेन ज्यादा या डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है, तो कंपनीज को फोकस किया, सॉरी इन्वेस्टर्स को फोकस किया जाता है या इसके ऊपर देखा जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसी कंपनी। प्लस वो कंपनी जो कि थोड़ी सी जिनकी सॉल्वेंसी कम होती है, जो कि लिक्विडिटी पोजीशन जिनकी कम होती है, उनके ऊपर भी इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल सिग्नलिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्नलिंग, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, सिग्नलिंग मतलब ही है कि वो सिग्नल कर रहा होता है स्टॉक्स, बेसिकली स्टॉक प्राइसेस हैव सम इंफॉर्मेशन इन देम एंड दे रिफ्लेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इफ द स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग, दैट मींस द कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, देयर इज अ डिमांड फॉर द कंपनी स्टॉक। इफ देयर स्टॉक प्राइसेस इज डिक्रीजिंग, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द company is not paying out enough dividend or is not gaining enough earnings on their investment। So इसका मतलब ये होता है कि वो decreasing trend में है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, that information that is incorporated into the stock price or the sale or purchase or demand or supply of your certain stocks, that information is then is work as a signal for the investors कि यार this is a signal, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, this is where we have to invest, this is where we don't have to invest, this is where we have to expect a certain larger amount of investment, here we don't have to expect the larger। जितनी increase percentage से ज्यादा increase हो रही, that means we can expect a good return on that stocks investment। और जितना ज्यादा decrease हो रहा है, we have to decrease। तो वो financial signaling होती है। शेयर प्राइस और शेयर प्राइस से ये सिग्नलिंग मिलती है आपको फॉर इन्वेस्टमेंट एंड योर डिविडेंड एज वेल। तो जितना ज्यादा डिविडेंड पे किया जाता है, उतना ज्यादा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है, बट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड एज वेल।
Now let's look at the empirical testing of dividend policy. The first thing is your tax effect and financial stability. ऐसा जरूर है कि जब भी कैपिटल गेन होता है या आपके और किस्म के कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रोटेशन कॉस्ट है, जितनी भी ये चीजें हैं, दे डू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैपिटल गेन और द डिविडेंड ऑफ द कंपनी. ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है इन सब चीजों का, लेकिन वो ऑफसेट हो जाता है विद द टैक्स इफेक्ट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एंड नाउ हाउ, लेट्स लुक एट दिस थिंग. डिविडेंड्स आर टैक्स्ड मोर हेवीली देन कैपिटल गेन्स, सो बिफोर टैक्स रिटर्न्स should be higher for high dividend paying firms. So ऐसी firms जो कि high dividend pay करती है, they must have before tax return जो है वो higher होना चाहिए आपकी high dividend paying firm से. So tax dividends are taxed more heavily than the capital gain. तो ऐसी firms जो कि high dividend paying firms हैं, उनसे आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो you must have a before tax return जरा ज्यादा, जितना ज्यादा रिटर्न होगा टैक्स कट गया तो उतना ज्यादा बाद के लिए भी आपके पास अमाउंट ज्यादा बच जाएगी. Now empirical results are mixed. Recently dividends is largely consistent with the dividend neutrality. Now कहा यह जाता है कि dividend को neutral रखा जाए, stabilize रखा जाए. Now we have financial signaling. Expect the increase in dividends lead to positive excess stock returns, and similarly decrease in dividends leads to negative excess stock return. That means कि जितना ज़्यादा increase होगा dividend के अंदर, we can expect that there is a positive return on your stock or investment. तो extra कुछ expect किया जा सकता है. Now empirical results are consistent with these expectations. आप जब empirically उनको explain करते हो चीज़ों को, empirically means आप जब उनको मैथमेटिकली सॉल्व आउट करके चीजें देखें तो वी कैन से दैट एम्पिरिकली रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद दीज एक्सपेक्टेशन, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ टैक्स इफेक्ट दे हैव द मिक्स्ड ट्रेंड. Now let's look at the implications of corporate policy. Now this is very important. Whenever we are establishing a policy, we are focusing on the maximization of the shareholders' wealth. So this is very important कि आप उसमें दो चार चीजें consider करो. The first thing is you distribute excess funds to the shareholders and stabilize the absolute amount of dividends if necessary. Now this is a passive approach. कि आप क्या करते हो कि distribute your excess funds to the shareholders. अब जितने भी funds हैं, बजाय इसके कि बार बार उसको investment की जाए आपके projects के अंदर, कुछ अगर extra amount आ गई है तो you should invest that or give that amount to your shareholders as a dividend and stabilize the absolute amount of dividend. अब dividend को absolute amount of stabilize करना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हर किसी साल इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज एकदम इंक्रीज, तो दैट इज इन स्टेबलाइज. आपके इंक्रीज से एकदम डिक्रीज पे आए तो दैट इज इंस्टेबिलिटी. तो इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि जब व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग अ डिविडेंड पॉलिसी, यू शुड हैव अ डिविडेंड पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन कि आपका जितना भी डिविडेंड आएगा दैट मस्ट हैव एन एक्सेस स्टॉक रिटर्न दैट इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन कि आपकी जो स्टेबलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स होनी चाहिए. Now payouts greater than excess funds should occur only in an environment that has a net preference for dividend. तो ऐसी environment में ही excess fund आपकी जो payouts होते हैं वो greater than your excess funds होते हैं. Only whenever you are going to give a dividend payout, वो हमेशा आपके funds से हमेशा इसी ratio में ज़्यादा होंगे जब आपकी environment ऐसी हो that prefer the dividends. अगर आपकी ऐसी environment है जहाँ पे investor जो है वो उनके dividend नहीं मिल रहा, कम मिल रहा, चलो जी बेच दो, जैसे कोई that is the condition of Pakistan. नहीं मिल रहा dividend, okay, people do get hyper and people do get confused with these situations कि जी अभी stability country के अंदर नहीं है, ऐसा है वैसा है, यहाँ से investment निकालो बेच दो दूसरी जगह, अब the stocks बेच दो. Now that was all about implications. Few more other implications. There is a positive value associated with a modest dividend. Could be due to institutional restrictions or signaling effects. क्या है कि positive value associated है with the modest dividend. The modest dividend वो है जो कि stabilize होता है, जो कि एक proper form में आपके पास in the form of cash dividend आता है without any other restrictions. So could be due to the institutional restrictions or signaling effect. In institutional restriction or signaling effect की वजह से ऐसा हो सकता है कि they have positive value associated. Now dividends in excess of the passive policy does not appear to lead to share price improvement because of taxes and flotation cost. अब ये कहा जाता है कि ऐसे dividend जो कि passive policy जिसपे follow की जा रही होती है does not appear to lead to उसका ऐसा dividend जो कि या dividend policy जो कि dividends के ऊपर passive dividend policy follow करते हैं वो आपकी शेयर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट और शेयर प्राइस को इम्प्रूव नहीं कर रही होती, उसको पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं कर रही होती. क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. Now we have factors which influence the dividend policy. We have certain rules जो कि हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या factors हैं जो कि जब whenever we are creating a dividend policy तो ऐसे क्या factors हैं जो कि आपके dividend policy को affect कर रहे होते हैं. Now let's look at some of the legal rules. The first one is your capital impairment
rule where many states prohibits the payment of dividends if these dividends damage the capital. Now damage the capital के क्या मतलब है? Usually either the par value of the common stock or par plus additional parent capital जो है वो जो है उसको ऊपर directly affect आ रहा होना. Incorporation in some states allows a firm to use the fair value rather than the book value of its assets when judging whether a dividend impairs the capital. Now ऐसा dividend जो कि आपके overall capital को affect कर दे, overall capital की value को decrease कर दे या आपके shareholder की wealth maximization में contribute ना करे, तो ऐसे dividend जो है वो कहीं बहुत सारी states में prohibit किया जाता है. That is, it is not being allowed in those states to make payment of dividends, specifically those dividends who are going to affect the capital amount or the amount of investment. We have another rule that is called insolvency rule, जो कि मैं पहले भी बता रही थी. Insolvency rule को अगर आप consider करें तो हमारे insolvency rule क्या कहता है? Some states prohibit the payment of cash dividends if the company is insolvent under either a fair market valuation or equitable sense. अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी states है, for example अगर आप insolvency क्या है या insolvent कैसे हो जाती हैं companies, वो companies जिनकी liquidity position बहुत low है, वो कंपनीज जो कि अपने करंट एसेट्स को, जिनकी करंट लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन योर करंट एसेट्स. व्हेन योर करंट लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन योर करंट एसेट्स वी से दैट देयर इज अ चांस ऑफ इंसॉल्वेंसी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो उसकी पोजीशन काफी डाउन होती है. सो विल डू लुक एट द करंट रेशियो एंड फ्यू अदर थिंग्स के इनकी क्या, और अपने डेट्स पे ऑफ करने की जो एबिलिटी है वो फर्म की बहुत कम हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं दैट इज इंसॉल्वेंट. सो स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन की जाती है कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जब की जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ ग्रुप, तो द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड. कहा जाता है कि कैश डिविडेंड ना दिया जाए, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश ना दिया जाए फॉर द कंपनीज इफ द कंपनी इज इंसॉल्वेंट. दैट मीन्स कि वो इतनी ज्यादा स्टेबल ना हो और उसकी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग ना हो. देन वी हैव अनड्यू रिटेंशन ऑफ अर्निंग रूल. एक और लीगल रूल है जिसके अकॉर्डिंग टू विच कि आप अपनी एक्स्ट्रा जो जरूरत के बगैर अपनी रिटेन अर्निंग्स को या अपनी अर्निंग्स को रिटेन नहीं करना चाहिए. तो इट प्रोहिबिट्स द अनड्यू रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स इन एक्सेस ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द फर्म. फॉर एग्जांपल आई हैव सर्टेन फंडिंग नीड्स या फाइनेंशियल नीड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब वो नीड्स क्या है कि जी मेरे एक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस प्रोजेक्ट के अंदर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इतना सर्टेन कैश लेवल मेंटेन करना है, इतने सर्टेन आपके न्यू प्रोजेक्ट फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये न्यू प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उनके लिए फाइनेंसेस रखे जाते हैं. ये आपकी फ्यूचर हो गया. और प्रेजेंट करंट सिचुएशंस में जितनी भी पेमेंट्स मेड करनी है या कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा करनी है, तो वो सारी रिटेन. इसके अलावा अगर आपका एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा कोई काम है तो उसके लिए अपनी अर्निंग्स को रिटेन ना किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे किया जाए आपके डिविडेंड शेयर होल्डर्स को. Now factors, ये इनमें से एक factors है कि undue retention of earnings rule जो है it is one of the factor which is directly going to affect the dividend policy. Now अगर ऐसा कोई rule है तो that means कि company जो है वो retain earnings जो है वो excess, उससे क्या होता है क्योंकि dividend policy strong बनती है कि जी we have this certain rule of retention of earnings rule, undue retention of earnings rule is prohibited. So अगर ऐसा कोई prohibited rule है तो then आपकी dividend policy के ऊपर effect directly आता है. Some other issues देख लें जो कि बड़े important हैं. Now the first one is your other issues to consider. The first one is your funding needs of the firm. Now this is very important to consider क्योंकि आपकी funding need क्या है organization की, whether do you want to have a large amount of cash dividend or you want to in order to pay the large amount of cash dividend you must have a large amount of earnings. In order to have a large amount of earnings you have a large amount of capital invested in your organization and that capital is being positively or strongly being used as within an operations or the assets are being used within the organization to create or to generate more earnings. तो अब क्या किया जाता है कि अब फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म देखी जाती है सबसे पहले कि फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म और है नहीं है, क्या न्यू शेयर इशू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा या कोई भी ऐसी कंडीशन या प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ रिस्क कितने इन्वॉल्व है. अब वो सारी फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म को देख के आपकी डिविडेंड पॉलिसी पे इफेक्ट आ रहा होता है, डेफिनेट आ रहा होता है. अगर तो कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, लेट्स look at few other issues to consider for factors, specific factors which are going to affect your dividend policy. The first one is your funding needs of the firm. Now this is very important for an organization to look at the funding needs of the firm, that whether we will be needing more funds for the organization, do we have to issue more stock or more
of course more stock or shares to the general public in order to have an equity financing, or we have to go for the debt financing. After all these conditions, what we are going to do is we have a net, we'll be looking at the after generating profit decisions of the funding. For example, अगर मेरे पास एक certain amount of net income आ गई है, now I'm going to consider that whether to go for putting all these income as an retained earnings or whether I have to give the dividend. Now, dividend policy में ये चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं कि आपकी फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म क्या है. Now, this is very important to forecast whether you will have whether you will have greater funding needs or whether you will have to finance new projects, whether you will have to go for keeping certain level of cash at your organization, managing your working capital. ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद फोरकास्ट किया जाता है और इसको देखा जाता है कि कितने बेहतर तरीके से फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म जो है वो कंट्रोल की जा रही है. ना फंडिंग नीड्स जो भी फर्म की होंगी, अब उन नीड्स की बेस पे अगर आपने पहले फंडिंग जो करनी थी, जो वर्किंग कैपिटल में पेमेंट डालनी थी, कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट में डालनी थी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज गिवन एज अ डिविडेंड पॉलिसी. नाउ डिविडेंड पॉलिसी बनाते वक्त दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि आप जब भी अपनी फंडिंग स्पेसिफिक इनकम आएगी उसको फोकस करने के बाद, उसके ऊपर पेमेंट करने के बाद, फाइनेंसेस करने के बाद, जो रिटेन करने के बाद जो अमाउंट रह जाएगी दैट इज टू बी पेड एज अ शेयर होल्डर. अब डिविडेंड पॉलिसी में अगर ये चीज एक्सप्लेन है और फोरकास्टेड है कि जी इतने अमाउंट से ज्यादा आपकी अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग नहीं जाएगी, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी. या ये कह दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आपकी फंडिंग नीड्स को प्रेफर किया जाएगा देन योर डिविडेंड, इट डज हैव एन इफेक्ट ऑन योर डिविडेंड पॉलिसी फॉर्मेशन. द नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विडिटी. नाउ लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लिक्विडिटी कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन हैज द एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज थ्रू इट्स करंट एसेट्स एंड इट डज हैव द एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स ऑल लायबिलिटीज विद द कैश पेमेंट्स अपनी एंड हैव एन एनफ कैश मेंटेनेंस टू पे ऑफ सर्टेन. अगर एकदम से कोई आ जाते हैं सर्टेन सिचुएशंस वेयर यू हैव टू मेक पेमेंट इन कैश, तो वहां पे भी पेमेंट्स की जाए. दैट डिफाइंस योर लिक्विडिटी पोजीशन. नाउ इसके डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर कितना इफेक्ट आता है, देखिए जितनी ज्यादा कंपनी जो है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन हायर होगी, दैट मींस कंपनी हैज अ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी हैज एनफ कैश और करंट लायबिलिटीज इन ऑर्डर टू डील विद द सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन अनसर्टेन सिचुएशन स्पेसिफिकली. तो मुझे अनसर्टेन सिचुएशंस में आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा है, दैट मींस कैश फॉर्म मेंटेनेंस ज्यादा है, ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू मेक पेमेंट्स. जब कैश मेंटेनेंस ज्यादा है तो वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कैश मेंटेन करती है, that means they are able to pay their dividends as well. ठीक है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कैश बेहतर मैनेज करते हैं, दे हैव अ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, दे हैव अ बेटर पोजीशन ऑफ पेइंग ऑफ टू देयर शेयर होल्डर्स एज कंपेयर टू द कंपनीज व्हिच हैव लो वैल्यू ऑफ योर लिक्विडिटी. Well, this leads to your financial flexibility, which directly affects your dividend policy. Now we have another thing, that is ability to borrow. Now an organization's ability to borrow, अब जितना ज़्यादा organization की position अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी financial flexibility होगी. Financial flexibility ज़्यादा है या आपकी financial position, liquidity position अच्छी है, उसके बाद आपकी financial position of organization अच्छी है, financial leverage position अच्छी है, तो उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या कंपनी को certain level पे एकदम से अगर कहीं से पैसे borrow करने पड़े, तो whether the organization does have a certain level of you can say कि कितना कोई बहुत अच्छी उसकी पोजीशन है कि वो पेमेंट कर सके या ना कर सके. Now this is very important to consider कि आपकी जितनी भी अब जो भी इसकी पेमेंट्स करनी है, कुछ ऐसे करना है, आपकी एबिलिटी ऑफ डिफाइन करता है आपकी एबिलिटी टू बोरो. अब जितना अच्छा आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, जितना अच्छी उसकी लिक्विडिटी पोजीशन है, जितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, दैट इंश्योर्स कि यू आर एबल टू मेक योर डेट पेमेंट्स. जब आप अपनी डेट की पेमेंट्स पे कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो एबल टू मेक योर इक्विटी पेमेंट्स एज वेल. तो आप जितना अच्छा, अब फोकस ये होता है कि क्रेडिटर इस चीज पे फोकस करते हैं कि आपकी बोरिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. जितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होगी कंपनी की, उतनी ज्यादा जगह पे कंपनी जो है वो अपने फंड्स बोरो कर सकेगा. दैट रिफ्लेक्ट्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली
क्योंकि कंपनी अगर फ्यूचर बेहतर पोजीशन है तभी उसको डेट फाइनेंसिंग मिल रही है ना, तभी उसको वो अपने बॉन्ड्स इजीली इशू कर सक रहा है। तो जाहिर बात है कंपनी की जो ओवरऑल रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से कंपनी इज एबल टू बोरो इट्स फंड थ्रू बॉन्ड और थ्रू लोन्स और थ्रू बैंक्स क्रेडिटर्स। और जितनी अच्छी पोजीशन है उतने ज्यादा वो बोरो कर सक रहा है। अगर बोरो कर सक रहा है, पोजीशन अच्छी है, दैट मींस दे आर आल्सो एबल टू पे ऑफ देयर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड पॉलिसी में ये चीज भी बड़ी ज्यादा अफेक्ट करती है। देन वी हैव रिस्ट्रिक्शन इन डेट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्ट्रिक्शन ये कि आप बॉन्ड्स जो है, क्योंकि हमारे डेट कॉन्ट्रैक्ट्स बॉन्ड्स ही होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, तो डेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जितने भी होते हैं उसमें सम रिस्ट्रिक्शंस अगर हो जाए, किसी कंपनी जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन नहीं कर सकती, या कंपनी जो है वो बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकती, ऐसी डेट फाइनेंसिंग नहीं कर सकती, दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और जब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी पे भी डेफिनेट इफेक्ट आता है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिक्रीजेस। देन वी हैव कंट्रोल। अब ऐसा जरूर है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कंसिडर किए जाते हैं आपके इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स वो हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर तो कंट्रोल करके आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो कम दिखाई जाए, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है तो दैट मीन्स के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, और इट विल फोर्स और प्रेशराइज द शेयर होल्डर्स टू गो फॉर कैपिटल गेन्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पे आउट। तो आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बिकने आपके वो बेचना शुरू कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस और डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जितनी ज्यादा कम रखते हैं तो उसमें जब ऐसी हॉस्टाइल एक्विजिशन वाली या सिंपल एक्विजिशन की जो कंडीशन होती है जिसके अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर कंट्रोल ले सकती है या उसको एक्वायर कर सकती है। नाउ लेट्स सपोज कि मेरे शेयर होल्डर्स की मेरी एक कंपनी है जिसकी शेयर होल्डर्स के ऊपर जो डिविडेंड उनको दिया जाता है या डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो बहुत कम है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। अब मैंने अगर उसको एक्वायर करना है तो शेयर होल्डर्स को पहले तो इस बात पे कन्विंस करना पड़ेगा कि लेस डिविडेंड है, जबकि ज्यादा पे किया जा सकता है, लेस डिविडेंड पे आउट रेशियो है, जस्ट लीव दिस कंपनी और अलाउ अस टू हैव अ कंट्रोल। तो वो कंट्रोल या एक्विजिशन हो सकते हैं। बट इफ इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर डीलिंग विद ability of paying your debt or ability of paying your cash payments or ability of maintaining your retention maintaining or retaining your earnings for future use and forecasting it betterly, तो अगर कंट्रोल अच्छा है और अच्छे तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए तो then dividend policy can have a positive effect as well. Now let's look at the dividend stability. That is another important part of your very important part of your dividend policy. हमारी dividend policy इस तरह की होनी चाहिए कि आपके dividend stability create हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस चीज को कंसिडर किया जाए कि जितने ज्यादा अच्छा बेहतर डिविडेंड पॉलिसी बनेगी उतनी ज्यादा डिविडेंड स्टेबिलिटी होगी। जब डिविडेंड स्टेबिलिटी होगी पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड ऑफ योर शेयर्स there is an increase in share price, and when there is an increase in share price the shareholder wealth maximization is certain. Now what is stability? Stability is maintaining the position of the firm's dividend payments in relation to a trend line. जो आपकी जितनी भी जो trend line है that is your earnings, जितनी भी earnings है उनके मुताबिक क्या position आप maintain करते हो अपने dividend payments की। Now if you look at the graph it is being made, इसमें graph में आपके horizontal axis, that is your x axis पे is the time and your y axis represents your dollar per share. हर शेयर पे कितनी अमाउंट दी जा रही है डॉलर्स कर ले, और we can say rupees per share. Now when we talk about the 50% of earnings paid out as dividend, we are looking at the earnings. If you look at these if you look at the amount of this trend line, that is your earning per share, that is being defined as earning per share. This earning per share is 50% of earnings paid out as dividend. That means whatever is being earned, for example 100 rupees is being earned, 50 rupees is given as a dividend. If you are earning 200 rupees, that means 100 rupees is given as a dividend. If you look at the stability or the trend of your dividend per share, that is earning per share is increasing, similarly your dividend per share is increasing for that year. For example, if this is your first year, this is your second year, third year, fourth and fifth year, that means accordingly with the increase in time there is an increase in dividend policy. As your earnings are increasing, your number of your number of dividend policy or the number of dividend per share is increasing as well. Now if we look at another form, that is your earning per share 50% dividend payout rate with stability. अब इसमें भी 50% earnings है but with stability. उसमें क्या है कि 50% of earning अगर 100 है तो 50 is given as
योर डिविडेंड एज डिविडेंड, एंड 200 है तो 100 डिविडेंड दिया सारा 50% के साथ मेंटेनेंस. इंक्रीज हो रही है अर्निंग्स तो डिविडेंड इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है अर्निंग्स तो डिविडेंड डिक्रीज. नाउ इफ यू लुक एट डिविडेंड बिगिन एट 50%, इफ स्टेबिलिटी के साथ देखा जाए तो डिविडेंड बिगिन एट 50% ऑफ द अर्निंग्स बट आर स्टेबल एंड इंक्रीज ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय अर्निंग्स इन ग्रोथ इन अर्निंग्स. नाउ अब किस तरह से है कि ये अगर आप इसको देखें, जो रेड लाइन इंडिकेट करिए दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन योर डिविडेंड. अब इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज इन योर अर्निंग्स क्या है आपकी डिविडेंड. अब जो येलो लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स योर अर्निंग पर शेयर. जिस तरह ये आपके अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर योर इंक्रीज हो रही है विद स्टेबिलिटी, लेकिन आपके डिविडेंड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. योर डिविडेंड स्टार्ट एट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे $2 पर शेयर अगर आपकी अर्निंग्स थी तो $1 पर शेयर आपका डिविडेंड दिया गया है. इसी तरह अगर इट वाज 2.5 तो ये फिर भी $1 रहा है. अगर ये इंक्रीज आ रहा है लेकिन ये फिर भी अब यहाँ पे जाके इंक्रीज हुआ. अगर आप देखें यहाँ पे क्या था, एक सर्टेन लेवल ऑफ इंक्रीज था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो आपकी डिविडेंड में कहीं ना कहीं इंक्रीज आया है. दैट मीन्स के डबल डिफरेंस आया. अब देखें यहाँ पे 2 पर शेयर था, यहाँ पे जाके इट इज, अगर यहाँ से देखा जाए तो इट इज 4. अर्निंग्स कितनी हुई है, 4 पर शेयर. दैट मीन्स इट्स डबल. इसी तरह 2 पे अगर 1 था, जब डबल हो गई है, 2 अर्निंग्स पर शेयर का डबल हुआ है, तब ओनली यहाँ पे इंक्रीज आया है इस जगह पे. और इसी तरह ये इंक्रीज डिक्रीज, जब वो डिक्रीज हुआ है तो देखिए जो इंक्रीज हुआ था यहाँ से आपकी अर्निंग्स डिक्रीज होना शुरू हुई है, फिर और डिक्रीज, फिर और डिक्रीज. ये जो डिक्रीज आया इससे आपकी डिविडेंड की वैल्यू पे इंक्रीज नहीं, आपकी डिविडेंड लाइन बिल्कुल स्टेबल रही है. जो इंक्रीज एक दफा किया था वहीं पे स्टेबल रही है. नाउ दैट्स कॉल्ड द डिविडेंड स्टेबिलिटी. कि आपकी अर्निंग्स में जितना मर्जी फ्लक्चुएशंस हो, जितनी मर्जी वोलेटिलिटी हो, और डिविडेंड्स पर शेयर में वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशंस नहीं होती. उसका रीजन भी ये है कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी में अगर ये चीज डिफाइन है कि किस तरीके से डिविडेंड पे आउट करना है. अब जितने भी आपके शेयर होल्डर्स या आपके इन्वेस्टर्स होते हैं या इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स होती हैं, दे डू प्रेफर द कंपनीज विद द डिविडेंड स्टेबिलिटी. Now let's look at few of the things that deals with the valuation of dividend stability. The first thing is your information content. Management may be able to affect the expectation of the investors through the informational content of the dividends. A stable dividend suggests that the company expects stable or growing dividend in the future. अब देखिए ये किया जाता है कि certain market में कोई organization की certain सी information दी जाती है. Whatever information is being given, that information is actually reflect in the share price. और share price इसी तरह increase डिक्रीज होती है और आपके शेयर जो है वो उनकी डिमांड डिक्रीज इंक्रीज होती है. नाउ management do have that effect on the expectation of the investors. Now अगर आपके dividend stable dividend है तो that suggests that the company expects stable or growing dividends in the future. इसका मतलब है कि कंपनी stable देने का मतलब क्या है कि कंपनी expect future में भी यही करती है कि यही stabilize रहेगा, कहीं पे decrease नहीं आएगा, यही stability रहेगी या increase आ सकता है in the future. Then we have तो आपके इस तरह की expectation से they do prefer, investors do prefer those companies with the dividend stability. Then we have current income desires. Some investors who desire a specific periodic income will prefer a company with stable dividends to one with unstable dividend. तो वो current income desires में वो लोग जो कि अपनी आज इन्वेस्टमेंट आज रिटर्न के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि हमारी periodic इनकम रहे कि इंक्रीज अगर आ रहा है तो एक periodic लेवल से, डिक्रीज अगर आ रहा है तो डिक्रीज ना आए, वो that remains stable. तो वो periodic लेवल से इंक्रीज को देख रहे होते हैं in their income, so that they prefer the stable dividends over unstable. They prefer stable dividend over unstable dividend. Now institutional consideration, if you look at the third point, that is a stable dividend may permit certain institutional investors to buy the common stock as they meet the requirements to be placed on the organization's approved list. अगर आपकी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डिविडेंड स्टेबल डिविडेंड देती हैं तो वो आपके अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम योर गवर्नमेंट, योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है फोकस करते हैं ऐसी कंपनीज के में इन्वेस्टमेंट को या उनकी शेयर्स को परचेज करने की जिनकी डिविडेंड जो है वो स्टेबल होता है या स्टेबिलिटी इनकी डिविडेंड पॉलिसी में डिफाइंड होती है, डिविडेंड स्टेबिलिटी इन डिविडेंड्स. नाउ लेट्स लुक एट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स और उन पे किस तरह से इफेक्ट इन द डिविडेंड पॉलिसी आता है. द फर्स्ट वन इज योर रेगुलर डिविडेंड. दैट इज द डिविडेंड दैट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय द फर्म. फर्म जो है वो पे करेगी, इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न पता होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आएगा, वो रेगुलर डिविडेंड है. द एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है दैट इज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस. फॉर एग्जांपल नॉन रिकरिंग डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स. नॉन रिकरिंग का मतलब है कि बार बार उसी फॉर्म में नहीं. लेट्स सपोज
$1 पर शेयर, $1 पर शेयर, $1 पर शेयर, एक्स्ट्रा डिविडेंड एक दफा दिया गया $2 पर शेयर, तो $2 पर शेयर अगले साल जरूरी नहीं है $2 ही मिले, अगले साल वो $1 पर शेयर पे वापस आ सकता है, तो दैट इज नॉन रिकरिंग डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इन एडिशन टू द रेगुलर डिविडेंड दिए, उसके एडिशन में एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है, एंड इट इज ब्रॉट अबाउट स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एक्स्ट्रा अर्निंग्स होगी, बहुत एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल अर्निंग्स होगी, ये कंपनी इज गोइंग इन अ वेरी गुड कंडीशन, या कंपनी के एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स जो है उनसे अर्निंग ज्यादा होगी, तो इन दैट केस वी मूव ऑन टू योर इट इज ब्रॉट about by special circumstances. Now stock dividends and stock splits. Now stock dividend क्या होता है? A payment of additional shares of stock to the shareholders often used in place of an addition in a cash dividend. For example, मैंने अगर dividend देना है तो instead of giving a cash dividend I give a stock dividend. मतलब मैं ये करूं कि मैं एक शेयर होल्डर के पास अगर 2 शेयर है तो मैं उसको 2 शेयर्स और दे दूं, तो मैं हर शेयर होल्डर को 2 शेयर्स और, अगर 2 शेयर्स और देने का मतलब ये है कि दे हैव मोर कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर देयर इज अ स्टेबिलिटी और द स्ट्रॉन्ग पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो नेक्स्ट टाइम डिविडेंड दिया जाएगा तो वो 2 शेयर नहीं 4 शेयर्स के ऊपर दिया जाएगा, तो आपके स्टॉक डिविडेंड होता है। नाउ देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड। नाउ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड हम ये कहते हैं कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड है, वो स्मॉल स्टॉक डिविडेंड क्या है? इट इज टिपिकली लेस देन 25% ऑफ द प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक, जितना पिछले साल अगर 1000 शेयर्स थे उनकी 25% से कम अगर आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, तो दैट मीन्स पिछली दफा के जो 1000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 1000 शेयर्स थे या चले 100 शेयर्स थे, इस 100 शेयर्स का 25% निकाला तो दैट इज 25, दैट मीन्स कि 25 रुपीज आज डिविडेंड हम इससे मिनिमम नहीं होनी चाहिए। तो इस दफा अगर मेरा डिविडेंड था 30 रुपीज पर शेयर, तो फिर तो इसका मतलब है कि इट इज अ लार्ज स्टॉक डिविडेंड। अगर तो ये होता 25 से कम, लेट्स सपोज इट्स 21 पर शेयर, तो दैट मीन्स इट इज लेस देन योर ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 25%, ठीक है, लेस देन योर 25%, तो दैट मीन्स कि ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टॉक डिविडेंड है। तो इफ यू लुक एट द डिफरेंसेस, जो कि डिफरेंस आता है आपकी स्टॉक डिविडेंड बिफोर 5% और बिफोर लेट्स सपोज 5% स्टॉक डिविडेंड दिया जा रहा है कहीं पे, अब एक कंपनी है उसकी अगर आप कॉमन स्टॉक को देखो तो $5 पर पार उसकी अगर वैल्यू एंड 400,000 शेयर्स हैं, तो उसके उसके कॉमन स्टॉक की वैल्यू है 2 मिलियन। इसी तरह एडिशनल पेड इन कैपिटल इज 1 मिलियन एंड 7 मिलियन। अब अगर आप उसकी वैल्यूज को देखें तो उनकी ओवरऑल वैल्यूज में किस तरीके से फर्क आएगा आफ्टर 5% स्टॉक डिविडेंड। अगर सिर्फ 5% स्टॉक डिविडेंड दिया गया तो आपके जो शेयर्स हैं दे हैव मूव्ड फ्रॉम 420,000 शेयर्स, क्योंकि 20,000 शेयर्स और इश्यू किए गए हैं, 20,000 शेयर पार वैल्यू उतनी है, तो योर वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बिकम 2.1 मिलियन, एडिशनल पेड इन कैपिटल बिकम 1.7 मिलियन एंड देयर इज अ रिडक्शन इन योर रिटेन अर्निंग्स दैट इज 6.2, क्योंकि इस दफा इसका मतलब है कि अगली दफा जो पेमेंट्स कैश पेमेंट्स दी जाएंगी वो जरा ज्यादा होंगी। Now let's look at another type of stock dividend, that is called your large percentage stock dividend. Now that's typically 20% or greater of previously an outstanding common stock. इसका मतलब है कि 20% से या 25% से ज्यादा खजब दिया जाता है। The material 25% या उससे ज्यादा खजब दिया जाता है। Now the material effect on the market price per share causes the transaction to be accounted differently. Now reclassification is limited to the par value of additional shares rather than pre-stock dividend or value of additional shares. अब क्या है कि आपकी जिस तरीके से भी material effect on the market price किस तरह से हर पर share causes the transaction to be counted differently, वो differently उसको देखा जाता है। Now reclassification is limited to the par value of additional shares, जो भी additional shares issue किए गए हैं stock डिविडेंड उनकी पार वैल्यू को देखा जाता है रादर देन प्री स्टॉक डिविडेंड वैल्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स, उनकी पहले से वैल्यू को नहीं देखा जाता। अब इसमें बड़ा जरूरी है कि अगर 20% जो भी आपके पिछले आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे उनकी 20% वैल्यू फाइंड आउट, उससे अगर ज्यादा दिया जा रहा है तो आपका लार्ज परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड होता है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज स्मॉल। डिफरेंस देख लें कि अगर बिफोर 100% स्टॉक डिविडेंड था दैट इज 2 मिलियन, 1 मिलियन, 7 मिलियन एंड योर ओवरऑल शेयर होल्डर स्टॉक की वैल्यूएशन थी 10 मिलियन रुपीज। अब क्योंकि स्टॉक डिविडेंड से ओवरऑल टोटल इक्विटी चेंज नहीं होती, जस्ट वैल्यू इन चेंज हो जाती है। अब $5 पार वैल्यू 400,000 शेयर्स के लिए थे। अब 100% स्टॉक डिविडेंड, 100% स्टॉक डिविडेंड का मतलब है कि 200,000 शेयर्स थे पहले इशू हुए, तो 400,000 शेयर्स थे पहले इशू हुए, दोबारा से 400,000 शेयर्स थे, यानी कि 100%। अब 5% का मतलब क्या था कि अगर 400,000 शेयर्स इशू हुए तो 400,000 का हाफ
का 5% निकालो, दैट इज 20,000, तो 20,000 शेयर्स इशू किए गए स्टॉक डिविडेंड, तो 5% था, सिर्फ को कम था, तो वेरी स्मॉल। लार्ज के अंदर क्या है कि 100% दिया जा रहा है, जितनी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वही उतने ही दोबारा से 400 थे तो दोबारा 400,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। पिछले स्मॉल वाले में क्या था कि अगर 400,000 थे तो 400,000 का 5% निकाल के 20,000 शेयर्स सिर्फ इशू किए गए थे। इससे अफेक्ट आपकी रिटेन अर्निंग्स के ऊपर डायरेक्ट आता है, दैट इज रिड्यूस टू 5 million। Now let's look at another thing, another type that is called your stock dividend. तो types of dividend में एक आपकी stock dividend हो गया and then your stock splits आ गया। Now an increase in the number of shares outstanding by reducing the par value of the stock। अगर par value of the stock अगर है जी let's suppose we say 5 par value थी, it is reduced to 2.5, उसको reduce कर दिया जाए अगर, तो वो increase in the number of shares कर दो आप। For example ओवरऑल जो वैल्यू थी स्टॉक की, फॉर एग्जाम्पल आपका 100 शेयर्स इशू हुए हुए थे 5 रुपीज के ऊपर, तो 100 शेयर्स एट 5 रुपीज का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने दी हुई थी दैट इज 500 आपने दी हुई थी। अब अगर इसमें क्या कर देते हैं कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज करके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज करके लेट्स सपोज दैट बिकम 200 और आपकी पार वैल्यू को डिक्रीज कर दिया 2.5, तो द आंसर रिमेन स्टिल आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो 500 ही रहती है। अफेक्ट वैल्यू पे नहीं आता, आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए लेकिन आपकी पार वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो डिक्रीज कर दी जाती है। नाउ सिमिलर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एज अ 100% स्टॉक डिविडेंड, जिस तरह 100% स्टॉक डिविडेंड दिया जाता है वैसे ही सिमिलर इफेक्ट ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशंस आएंगे। नाउ प्राइमरी यूज्ड टू मूव द स्टॉक इनटू अ मोर पॉपुलर ट्रेडिंग रेंज एंड इंक्रीज द शेयर डिमांड। ये तब किया जाता है जब आपके शेयर डिमांड इंक्रीज करनी हो या नंबर ऑफ शेयर जो है विद इन अ मार्केट ज्यादा इंक्रीज करने हो। अज्यूम अ कंपनी विद 400,000 शेयर्स ऑफ 5 पार वैल्यू पार कॉमन स्टॉक स्प्लिट 2 for 1, अगर हर 2 शेयर के ऊपर एक का स्प्लिट कर दिया जाएगा। हाउ डज दिस इम्पैक्ट द शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स? नाउ दैट इफ यू लुक एट द स्टॉक स्प्लिट एग्जांपल वेयर वी हैव 400,000 शेयर्स विद $5 par value, that means $2 million is the value। अगर पेड इन कैपिटल 100,000 और इससे बिफोर, अब अगर हम बाद में करें दैट इज 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, कि अगर हर दो शेयर के लिए एक शेयर और किया 100% इन्वेस्टमेंट दिया, 400,000 शेयर था उसको डबल कर दिया है 800,000 शेयर हो गए, लेकिन उसकी पार वैल्यू फ्रॉम $5 टू डिक्रीज होके, इफ यू लुक एट दिस थिंग द वैल्यू हैज डिक्रीज फ्रॉम $5 पार वैल्यू टू 2.5 एंड इट हैज मूव्ड द वैल्यू, जो ओवरऑल वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आएगा, ना ही आपकी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी में चेंज आता है। ये कैश डिविडेंड देने के बजाय स्टॉक स्प्लिट्स कर दिए जाते हैं। Now value reinvestors of stock dividend और stock split, अब stock dividend या stock split से आपका effect on investors क्या आता है? It affect the on investor total wealth, overall wealth के ऊपर difference आ जाती है, क्योंकि अगली दफा अगर ज्यादा shares है तो ज्यादा wealth आएगी। Effect on the investor psyche हो जाती है कि अच्छा शायद I am getting a more number of shares। इफेक्ट ऑन कैश डिविडेंड, डेफिनेटली कैश डिविडेंड रिड्यूस करके आप अपने स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट्स देते हो। मोर पॉपुलर ट्रेडिंग रेंज हो जाती है एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर वैल्यूएशन ऑफ योर स्टॉक डिविडेंड, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक ज्यादा दी जाती है। Now there is another thing that is called reverse stock split, a stock split in which the number of shares outstanding is decreased. Now that used to move the stock into a more popular trading range and increase the share demand. अब reverse की क्या stock split in which the number of shares outstanding is decreased. अब पहले तो हमने increase कर दिया था, जब इसमें decrease आता है। Now it is used to move the stock into a more popular trading range and increase the share demand. वो again वही वाली बात है कि stock split किया ही इसलिए जाता है। Usually signals negative information to the market upon its announcement, definitely वो negative effect आता है। Consistent with empirical evidence, अगर empirical evidence इसका mathematical formulation में हम देखें तो it does have a negative information, क्योंकि वो कहा यह जाता है कि शायद organization does not have enough amount of dividend to be paid, तो इसलिए वो reverse stock split कर रही है। Now assume a company with 400,000 shares of $5 par value common stock और 1 for 4, हम उसको डिवाइड कर दिया, पहले 2 for 1 था अब 1 for 4 कर दिया। पहले क्या वैल्यू थी, पहले उसकी अमाउंट 2 million, 1 million and 7 million थी फॉर योर कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटर्न अर्निंग्स एंड योर टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इज 10 million। नाउ आफ्टर 1 for 4 स्टॉक स्प्लिट, दैट मींस के आपके स्टॉक स्प्लिट को 4 दफा में डिवाइड कर दिया।
एक शेयर को 4 दफा में डिवाइड कर दिए, 4 दफा कम कर दिए। फॉर एग्जांपल आपको 400,000 शेयर थे, अब आपके सिर्फ 100,000 शेयर आएंगे, लेकिन पार वैल्यू इंक्रीज कर दी है। तो $5 पार वैल्यू थी, उसको इंक्रीज होकर वो 20 पार वैल्यू होगी। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो दैट वाज 20, और 400,000 शेयर को डिवाइडेड बाय 4 करें तो दैट इज 100,000 शेयर। नाउ इसकी ओरिजिनल वैल्यू वही रही है और ओवरऑल शेयर होल्डर्स इक्विटी रिमेन्स सेम। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक रीपरचेज। एक तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट है, एक और किस्म का ऑप्शन है तो जिसको हम कहते हैं स्टॉक रीपरचेज। Now, stock repurchase is the repurchase buyback of your stock by the issuing firm either in the open market or by self tender offer। अगर आपको याद हो तो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, तो बॉन्ड्स के अंदर भी हमने ये किए थे कि आपकी द ऑर्गेनाइजेशन डज हैव एन ऑप्शन और फैक्ट कि वो उसको पॉजिटिवली ले ले, अपने जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी बॉन्ड इशू किए गए हैं उनको वापस खरीद ले, ताकि दैट इज कॉल्ड द कॉल प्राइस और कॉलिंग ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड कॉल जो है कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह स्टॉक रीपरचेज इज द सेम कंडीशन ऑफ कॉलिंग योर शेयर्स back from the market. Now, reason for stock purchases are available for the management stock option plans, of course. Then we have available for the acquisition of other companies. अगर other companies ने acquisition करनी है तब वो stock repurchase किया जाएगा। Go private, for example, public से directly private market होनी, सारे shares खरीद के खुद privately owned एक organization बनाई जाए to permanently retire the shares, अपने shares को खत्म कर दिया जाए। और फिर से now methods of repurchase, if you look at the methods of repurchase, they are fixed price self tender offer, an offer by a firm to repurchase some of its own shares typically at a set price। दोबारा से एक certain set price के ऊपर खुद ही खरीद लिया जाए। Dutch auction self tender offer, a buyer or seller seeks bids within a specified price range। एक specified price range होती है, उसमें bid किया जाता है usually for a large block of stock, ज्यादा सारे stocks के लिए। After evaluating the range of bid prices received, the buyer or the seller accepts the lowest price that will allow it to acquire the entire block, to dispose of, उसको खरीद लिया जाएगा। एक certain range bid डिसाइड की जाती है और उसके बाद उस bid price के ऊपर certain block of stock जो है वो large stock जो है वो खरीदा जाता है। Then open market purchase होता है, company repurchase its stock through a brokerage house on the secondary market, किसी भी secondary market में जो भी price चल रही है उसके ऊपर जाके खरीद लिया जाए। Now, summary of repurchasing as part of dividend policy. The capital gain arising from the repurchase exactly equals the dividend that would have otherwise been paid. This result holds in the absence of taxes and transaction costs. अब हम assume ये करते हैं कि there are no transaction and taxes cost. To the taxable investor, capital gain are favored to dividend income as the tax on the capital gain is postponed until the usual sale of the common shares. Now, stock repurchases are most relevant to the firms with large amount of excess cash that might otherwise generate significant taxable transactions to investors. Firms must be careful not to make regularly occurring repurchases, or the IRS may consider the capital gains as dividend for the tax purposes. Now we have two major decisions for this dividend that affect the dividend policy: investment or financing decision. Your investing decision is not really as stock that is repurchased is held as a treasury stock and does not provide an expected return like any other investment. तो वो investment decision को affect कर रहा होता है। Financing decision it possesses the capital structure or dividend policy motivations. For example, a repurchase immediately changes the debt to equity ratio. Definitely आपने जब किया तो equity ratio आपकी equity कम हो गई है, that does have an effect on high financial leverage हो जाएगी। Now let's look at administrative consideration, some of the administrative consideration जो कि बड़ी जरूरी होती है whenever you are defining your dividend policy या dividend payout करने के लिए। Now there is a record date, ये चीज मैं शायद पहले भी एक दफा define कर चुकी हूँ। The date set by the board of directors when a dividend is declared, कि जब declare किया जाता है कि जब dividend दिया जाएगा, on which an investor must be a shareholder of the record to be entitled to the upcoming dividend। जब record date define की जाती है कि this is the date when the dividend is declared by the board of directors, तो उस date पे आपका shareholder होना जरूरी है। The board of directors met on May 8th to declare a dividend payable to shareholders on June 15th। अब ये record date है कि May 8th पे they have decided, and to the shareholders of record on May 31st। So they have said कि to declare a dividend payable to the shareholders on June 15th and to the shareholders of record on May 31st। तो May 31st को रिकॉर्ड किया गया कि वो लोग जो कि 31st May तक आपके शेयर होल्डर्स होंगे, ये चीज डिफाइन की गई on May 8th को कि 31st May तक वो लोग जो कि 31st May तक हमारे शेयर होल्डर्स होंगे will be offering them the dividend on June 15th। Now ex dividend date क्या होती है? वो डेट जो कि dividend declare होने रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले होती है। The first date on which the stock is purchaser is no longer entitled to the recently declared dividend। अब फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइड किया गया कि May 31st तक वो लोग जो कि डिविडेंड होल्डर्स होंगे
डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द शेयर होल्डर्स होंगे वही डिविडेंड लेंगे. अब 29 तक वो लोग जिन्होंने 29 तक आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं और अगर 29 को बेच दिया तो दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स, क्योंकि 2 दिन बाद एग्जैक्टली 2 दिन बाद आपकी 2 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है. तो इसलिए आपके 2 दिन पहले तक वो लोग जो कि 29 मई तक आपके शेयर होल्डर्स है उसको एक डिविडेंड डेट कहते हैं. द बायर एंड द सेलर ऑफ द शेयर्स हैव सेवरल डेज टू सेटल. द ब्रोकरेज इंडस्ट्री हैज अ रूल दैट न्यू शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स ओनली इफ दे परचेज the stock at least 2 business days before the record date. Now we have a declaration date, the date that the board of directors announces the amount of date for the next dividend. वो date जिसके ऊपर declaration date के आपको कहा जाएगा, the date that the board of directors announces the amount and date of the next dividend. वो define करते हैं कि next dividend कब दिया जाएगा and that is the amount of dividend we are giving. The date when the corporation actually pays the declared dividend, जो actually dividend pay किया जाता है, that is called your payment date. That is actually the June 15. तो May 8 को हमने decide ये किया, board of directors मिले, उन्होंने decide किया जी this is the amount and this is the date we are going to pay our dividend, that is May 8th and that is declaration date. Now payment date क्या है? The date when the corporation is actually going to pay your dividend, that is June 15th. Now let's have that is all about your dividend policy chapter. Let's have a brief overview of your today's lecture. That is, we discussed about the passive versus active dividend policies. That what are your dividend policies? What are your passive dividend policy? कि अगर आपकी कंपनी जो है वो सारी फाइनेंसिंग रिटर्न अर्निंग्स करने के बाद जो अमाउंट देती है टू योर डिविडेंड, दैट इज योर पैसिव डिविडेंड पॉलिसी. देन वी लुक एट फ्यू ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड योर डिविडेंड पॉलिसी, जिसके अंदर आपके डिफरेंट लीगल रिस्ट्रिक्शंस थे, डिफरेंट लीगल रूल्स थे और डिफरेंट ऑप्शंस थे कि ये इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती है, आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ योर लिक्विडिटी, योर बोरोइंग एबिलिटी, ये सब चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं. Then we looked at the dividend stability, that means कि कितने ज़्यादा आपके dividend stable है. So और ये सब चीज़ें भी consider की जाती हैं in case of your dividend policy. और जितने ज़्यादा organization का dividend stable होता है उतनी ज़्यादा expectation होती है कि investors are going to invest in your company and accordingly आपके manage होते हैं. Now stock dividends and stock split, हमने different types of stock पढ़े जिसके अंदर हमने regular dividend पढ़ा, extra dividend पढ़ा. Then we stock dividend is the dividend that is being given to the general public, या आपकी जिस तरह से भी dividend दिया जाता है वो डिविडेंड है कि कैश डिविडेंड की जगह आप स्टॉक दे देते हो. देन वी हैव स्टॉक स्प्लिट्स, जिसके अंदर 2 थे, एक आपका डायरेक्ट स्टॉक स्प्लिट था और एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट था. स्टॉक स्प्लिट वो जो कि इंक्रीज करता है आपके स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स को, लेकिन पार वैल्यू डिक्रीज करता है. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट वो है जो कि पार वैल्यू इंक्रीज करता है पर नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज कर देता है. देन वी हैव स्टॉक रीपरचेज, दैट इज द ऑप्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन कॉल इट्स स्टॉक. वो अपने स्टॉक्स को कॉल कर सकती है, उनको रिड्यूस कर अपने दोबारा से खरीद सकती है. एंड देयर आर so many reasons for stock repurchase. Then we have administrative consideration that defines your record date, then defines your payment date, your declaration date, and the day and your ex-dividend date. Well, that was all about your today's lecture about dividend policy. We'll be moving on to the next chapter in our next lecture. Till then, see you.